Hello students, how are you? I think you all are fine. Yes students, today we are going to start with our next chapter of our geometry, that is triangles and parallel lines, chapter 11. In this chapter we are going to study about the two parts, that is triangles as well as parallel lines. सबसे पहले हम लोग triangles के बारे में जानेंगे. What are triangles? What are the classifications of triangles and some important properties of triangles. And second part is parallel lines. Parallel lines, distance between two parallel lines, as well as we can learn about the transversal. That is the new topic to you. Firstly, take the triangle. What do you mean by triangle? Triangle means three non-collinear points joined by the line segments is called a triangle. Triangle की एक simple definition है, that is a simple closed figure made by three line segments is a triangle. आप लोग अभी तक shapes पढ़ते हुए आए हो क्लास फिफ्थ क्लास में. In your early classes, previous classes, you have studied about shapes and all. So you have studied about a triangle also, that is circle, square, that is polygons and all. So this is a type of a closed figure. Closed figure का मतलब है कि it is an let's take an example. Three non-collinear points. Do you know what are collinear points? Collinear points are those points which are lying on the same line. Collinear points वो points होते हैं जो एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा points होते हैं. हमने यहाँ पर 3 points लिए हैं. They are non-collinear points. Let's name them A, B and C. So if we join these three points, we can get a figure that we can call a triangle. अगर हम इन points को join कर देते हैं तो हमें एक figure मिलता है, and that figure is a triangle. So we can come to a conclusion that a triangle is formed by a set of three non-collinear points. And you can see a triangle has three sides: side AB, side BC and side AC. Next property of a triangle is it has a three angles also: angle A, angle B and angle C. Now we are having three vertices also. Vertices, in our earlier chapter, that is chapter number 10, we have studied about angles. तो angles में हमने vertex भी पढ़ा था. तो यहाँ पर जब हम triangle draw कर रहे हैं, we are having an angle is having only one vertex, but a triangle is having three vertices, 1, 2 and 3. That is vertices A, B and C. तो हम इसको name दे सकते हैं, that is parts of a triangle, that is sides. Sides means segments AB, BC and AC. Then angles, three angles are there: angle A, angle B and angle C. Next is vertices, that is three vertices are there: A, B and C. You know where two line segments join, we call it the point, we call it as vertex. So this is the property of a triangle. Now what do you understand by the interior and exterior part of the triangle? If some question is put up there that you have to find out the points that are lying in the interior or exterior of the triangle, so it's very easy. The points lying inside the triangle. For example, I have taken 2 points, that is P and O. These points are lying on the interior side of the triangle. तो हम इसे कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल के अंदर की तरफ पॉइंट्स है उसे हम कह सकते हैं पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. और जो पॉइंट्स ट्रायंगल की बाहर की तरफ है, फॉर एग्जांपल D, R, so these are the points that are lying in the exterior of the triangle. So these are the parts that is lying on the exterior of the triangle as well as interior of the triangle. Next thing we can study about the types of the triangles. टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल. दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स. जैसे कि अब ये ट्रायंगल है, तो अब इस ट्रायंगल की साइड्स के बेस पर हमें क्लासिफिकेशन किया गया है. जैसे फर्स्ट इज इन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल.
फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. In equilateral triangle, we are having all the three sides equal to each other. For example, we are taking a triangle of measuring 5 centimeter. If we have taken a triangle measuring 5 centimeter, then the other two sides will also be the same with a 5 centimeter measurement. So we can say that if three sides are equal in a triangle, then we call it as equilateral triangle, and we can name it P, Q and R. So we can say that triangle PQR is an equilateral triangle. Second is on the basis of sides, isosceles triangle. Isosceles triangle, the name itself suggests that a triangle having two sides equal. एक ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि हमने एक साइड ली है 6 सेंटीमीटर, बट वी आर टेकिंग द अदर टू साइड्स एज 5 centimeter. So you can see here two sides are equal here. We can name this triangle as DEF. So इस triangle में आपको पता चल रहा होगा कि ये दो sides equal है 5 centimeter and 5 centimeter, and the third side is 6 centimeter. तो जब किसी triangle में दो side equal होती है तो उसे हम कहते हैं isosceles triangle. Children, the next one is scalene triangle. Scalene triangle. In scalene triangle we can say, in this type of triangle, the triangle is having all the three sides different. तीनों साइड डिफरेंट होती है. जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है. Let's take 6 centimeter base. Now other side is 3 centimeter and the next one is 5 centimeter. So we can say X, Y and Z. Triangle XYZ is an scalene triangle as all the sides are different, 3 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. So you can see here all the sides are different. These are on the basis of sides. Now the classification of triangles on the basis of angles are also there. On the basis of angles, angles हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. First is right angle triangle. So right angle triangle, in a right angle triangle, one of the angle of a triangle is right angle. तीन एंगल में से एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है. The second one is acute angle triangle. Acute angle triangle you can understand by the name that in an acute angle triangle all the angles are acute. So that is less than 90 degree. So we can call them acute angle triangle. जैसे कि सारे एंगल जो भी तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम के होने चाहिए, तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल. उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, उसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. बिकॉज चिल्ड्रन यू नो दैट कि जब एक ट्रायंगल होता है तो उसमें तीन एंगल्स होते हैं, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दैट इज मेजर ऑफ एंगल्स. तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है एक ट्रायंगल में वो 180 डिग्री का होता है. कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसका जो टोटल मेजरमेंट होगा एंगल का वो 180 डिग्री का होता है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, अदर देन नॉट ऑल द थ्रीज. एंड इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होने चाहिए. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल in obtuse angle triangle also a triangle whose one angle is obtuse angle, that is more than 90 degree. obtuse angle में क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम. तो उसमें एक ट्रायंगल का एक एंगल मोर देन 90 डिग्री का होना चाहिए और 180 से कम का होना चाहिए. दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, दैट इज काइंड ऑफ ट्रायंगल्स. ये तो हमारे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स थे. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे थे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे थे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. प्रॉपर्टीज अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी, दैट इज द सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. दैट इज तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा इट शुड बी 180 डिग्री, नॉट मोर देन 180 डिग्री.
देन द सेकंड प्रॉपर्टी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों आपने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब वो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ये एक प्रॉपर्टी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ईच एंगल इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। नेक्स्ट इज द एंगल अपोजिट इज टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा अभी कि उसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें जब टू साइड्स इक्वल होती है तो उसमें टू बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट इज जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके दो एंगल्स भी इक्वल हैं। सो वी कैन से द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं। सो वी हैव कंसिडर्ड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? बेटा आप लोगों ने देखा है रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा दो ट्रैक्स होती है और वो सेम डायरेक्शन में जाती है हमेशा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है, दे आर टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस मूविंग इन अ स्ट्रेट सेम डायरेक्शन। हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनको अगर हम दोनों साइड भी एक्सटेंड करेंगे, अगर हम उनको दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो कभी मीट नहीं होनी चाहिए, यानी कभी दोनों मिलनी नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, ये एक एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज आल्सो इक्वल। आपने देखा है जब टू पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल लाइंस है, इनको हम कहते हैं लाइन एल और लाइन एम। इन ये दो पैरेलल लाइंस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम इन दोनों को और आगे बढ़ाते हैं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो पैरेलल लाइंस जब हम इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल होती है। तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं तक भी जाओ, आगे तक भी जाओगे तो आपको वो डिस्टेंस सेम ही दिखेगा, वो डिस्टेंस कभी कम ज्यादा नहीं होगा, यानी वो डेफिनेट रहता है। तो एक कंक्लूजन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। अब इस दो पैरेलल लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटेंड करेंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो भी ये इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये एक प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। इफ दे आर, अगर इन दोनों को एक्सटेंड किया जाए, इफ दे आर एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स देन आल्सो दे डज नॉट मीट ईच अदर। ये एक पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। नाउ पैरेलल लाइंस में आपके पास एक और टॉपिक है, दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये एक वर्ड है। ट्रांसवर्सल का मतलब है कि वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, दे मीट एट 2 पॉइंट्स और मोर देन 2 पॉइंट्स। जो लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जा रही है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ पर लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल। इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? लाइन एन को ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइंस कौन सी है? लाइन एल एंड लाइन एम। तो हम लोग दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। एंड वी कैन से इट कैन बी intersecting two or more given lines in a plane at different points। अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं पॉइंट P, इस पॉइंट को नेम दे सकते हैं पॉइंट Q। तो आपने देखा कि यह पैरेलल लाइंस को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। अगेन वी विल टेक वन एग्जांपल एंड वी कैन सी दैट हाउ पैरेलल लाइंस डिस्टेंस कैसे इक्वल हो सकती है। आप लोग की बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप लोग पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कैसे इक्वल है, एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, डायग्राम्स के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज वन एग्जांपल पेज नंबर 237 पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फिगर दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग के घर में भी टेबल आपने देखी होगी, टेबल्स होती है, और या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड देख लो, ब्लैक बोर्ड का जो शेप है वो भी एक तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप में भी पैरेलल लाइंस है। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो भी एक पैरेलल लाइंस का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया आपको ऑन पेज नंबर 237। देखेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल को। इन फिगर फर्स्ट
दैट इज AD पैरेलल टू BC। अब ये पैरेलल लाइंस का साइन कौन सा है? जैसे कि हम लोग ट्रायंगल्स लिखते हैं। इन आवर प्रीवियस चैप्टर इन एंगल्स आई हैव शोन यू द सिंबल फॉर एंगल। एंगल के लिए हम लोगों ने सिंबल देखा था। एंगल का सिंबल कौन सा है? दिस स्टैंड्स फॉर एंगल। एंड सेकेंड इज फॉर ट्रायंगल। अगर हमें कोई ट्रायंगल लिखना होता है तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास सिंबल है। ट्रायंगल को हम लोग एक सिंबल वाइज डिनोट करते हैं, छोटा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू से ट्रायंगल ABC। अगर हमें ट्रायंगल ABC बोलना है तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इट स्टैंड्स फॉर अ ट्रायंगल। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास एक सिंबल है टू स्टैंडिंग लाइंस। जैसे कि अभी हमें इन पैरेलल लाइंस को बताना है, लाइन L और लाइन M, तो हम लिख सकते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये जो सिंबल है ये पैरेलल का डिनोट कर रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि पैरेलल लाइंस हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल को इस सिंबल से और एंगल को इस सिंबल से। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट किया है। मैं आपको PDF भेजूंगी एक्सरसाइज की। यू कैन डू इट इन योर फेयर कॉपी। कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर कॉपी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मेंटल मैथ्स कॉर्नर। ये बच्चों आपको यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक इटसेल्फ। ये आपको बुक में ही करने हैं एंड यू कैन सॉल्व इट इन योर रफ कॉपी and do it. So please complete your work. Thank you so much.